সৃজন খবর বাংলা, খবর যেখানে জীবনের কথা বলে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারী ও বৃক্ষকে সমাজের সবচেয়ে ওপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। একইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ধরা হয়েছে বিবাহকে। তাই বিবাহের দ্বারা যেমন মানুষ, জীব ও প্রাণীর বংশবৃদ্ধি হবে, তেমনি প্রকৃতির গাছপালাদের মধ্যে বিবাহের মাধ্যমে উদ্ভিদকুল রক্ষা পাবে, পৃথিবীতে সুখ ও শান্তি বজায় থাকবে। তাই বর্ষা ঋতুর শেষে আষাঢ় মাসে ভগবান শ্রীবিষ্ণু নিদ্রা যান, আর শরৎ ঋতুর শেষে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তাই ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে আষাঢ়ের পর আসে অগ্রহায়ণ। অগ্রহায়ণ মাস থেকে নতুন করে বিবাহ শুরু হয়, কিন্তু ভগবানের বিবাহ না হলে মানুষের বিবাহ শুরু হবে না। তাই কার্তিক মাসের একাদশী তিথিতে প্রথম ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিবাহ হয় তুলসী বৃক্ষের সঙ্গে। কেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর তুলসী বৃক্ষের সঙ্গে বিবাহ হয়? তুলসী বিবাহের গুরুত্বই বা কি আমাদের সমাজে, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে যেখানে নারী নির্যাতন, লাঞ্ছনা চলছে সবচেয়ে বেশি, সেখানে এই বিবাহের মাধ্যমে ভারতীয় পুরাণ ও সংস্কৃতি নারী ও প্রকৃতি যে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে তার উদাহরণ এই তুলসী বিবাহ। কন্যগর রাজরাজেশ্বরী মঠে প্রতি বছর জগদ্ধাত্রী পুজোর নবমীর দিন মঠের আমলকি বৃক্ষে হয় আমলকি নবমী পুজো। পরে একাদশীর দিন সন্ধ্যায় হয় নিয়ম রীতিনীতি মেনে তুলসী বিবাহ। একাধিক তুলসী বৃক্ষকে মা রাজরাজেশ্বরী দেবীর সামনে রেখে নারায়ণ শিলার সঙ্গে দেওয়া হয় এই তুলসী বিবাহ। তুলসী বৃক্ষে পরানো হয় শাড়ি, সোনার হার, হাতে দেওয়া হয় সোনার বালা। তারপর বিবাহের যাবতীয় পদ্ধতি ও মন্ত্র উচ্চারণ করে সম্পন্ন হয় এই তুলসী বিবাহ। এমনকি ভক্তদের হাতে ছোঁয়ানো শাড়ি তুলসী মাতার গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়। রাজরাজেশ্বরী মঠে এই তুলসী বিবাহের ব্যাখ্যা দিলেন জ্যোতিষপীঠ ও সারদা দ্বারকাপীঠের পণ্ডিত রবি শঙ্করজি দ্বিবেদী। আর মঠের এই পুজো নিয়ে জানালেন ব্রহ্মচারী সচ্চি স্বরূপ। আমরা শুনে নেব সেই ব্যাখ্যা একটি বিরতির পর। নবগ্রাম পিপলস কোঅপারেটিভ ব্যাংক, আধুনিক ব্যাংকিং পরিষেবার যাবতীয় সুযোগ। আপনার ব্যাংক, আপনার পরিবারের ব্যাংক। কর্ণগর মাদার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, affiliated to Central Board of Secondary Education, New Delhi. Admission going on. SD Enterprise, ডিস্ট্রিবিউটর ধূপ, ফিনাইল, সাবান, সস, আচার সহ অন্যান্য গৃহস্থালির দ্রব্যাদি। খুচরো পাইকারি বিক্রেতারা সত্বর যোগাযোগ করুন। বণিক ট্রাভেলস, যে কোনো অনুষ্ঠানে যে কোনো ধরনের গাড়ি ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন। पुष्पांजलि समर्पयामि भगवते महाविष्णवे नमः। भगवते जगदम्बिकायै नमः। श्रीमज्जगद्गुरवे नमो नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। मंत्रेण क्रियाएण भक्तेन कराकरयतु इदं पूर्णं तदस्तु मे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मां जगदम्बा के प्रांगण में तुलसी विवाह का विधिवत आयोजन किया गया। पूज्य गुरुजी ने जो परंपरा यहाँ पर चलाए हुए है उसका निर्वाह किया गया। विधिवत कन्यादान हुआ, भगवान शालिग्राम के साथ भगवती तुलसी का विवाह हुआ। और समस्त विश्व कल्याणार्थ के लिए माँ जगदम्बा से, भगवान शालिग्राम से, माँ तुलसी से हम लोगों ने प्रार्थना की है कि देश में शांति हो, नारी का सम्मान हो, नारी का अपमान ना हो। इन्हीं सब प्रार्थनाओं के साथ हम लोगों ने पूजन आज भगवती जगदम्बा के यहाँ तुलसी विवाह को संपन्न किया। आज हमारी भारतीय संस्कृति में चातुर्मास व्रत
जो वर्षा ऋतु में और शरद ऋतु में किया जाता है, उस समय भगवान की एकादशी पहली जब आषाढ़ में आती है तो उसे हम देवशयनी एकादशी बोलते हैं। माने भगवान उस समय विश्राम में चले जाते हैं। और 4 मास जब व्यतीत होते हैं, वर्षा व्यतीत हो जाती है, शरद ऋतु के आने से प्रकृति में स्वाभाविकता आ जाती है, मतलब पूर इत्यादि नहीं रहते। उस समय कार्तिक शुक्ल के में जो अंतिम चातुर्मास का व्रत माना गया है, उसमें भगवान महाविष्णु का जागरण होता है एकादशी में। तो वो दिन भगवान का प्रबोधनोत्सव मनाया जाता है। इस तरह से ये एकादशी व्रत जो है यहाँ पूर्ण होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में मनुष्य के जो 16 संस्कार बताए गए हैं, उनमें विवाह संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और उसकी महत्ता इसी व्रत से सिद्ध हो जाती है कि भगवान का सबसे पहला जब विवाह यहाँ होता है, उसके बाद ही फिर हम सभी लोगों के लड़के लड़कियों के विवाह आदि संबंध होते हैं। और विवाहादि संबंध जो हैं वो किस प्रकार की भावना होती है, अभी संकल्प में बोला गया था कि समस्त प्राणियों के वंश का विस्तार हो, पुत्र पौत्रादिक संततियाँ जो होंगी वो अपने अपने धर्म में स्थिर रह करके देश काल कुल सबका कल्याण करें, ऐसी संतान प्राप्त हुई हो और किसी प्रकार का कोई अभाव न हो, किसी प्रकार की कोई इसमें अशांति न हो, सुखी परिवार, सुखी गृहस्थ जीवन बना रहे। यही सब संकल्प आज इस संकल्प में किए जाते हैं। और उस समय फिर हमारे यहाँ नारी का कितना बड़ा महत्व है कि जो माता पिता जिस कन्या को पाल पोष कर बड़ी करते हैं, उसे किसी सुयोग्य वर को दान कर देते हैं। दान का बहुत बड़ा पुण्य होता है और दानों में सबसे श्रेष्ठ दान हमारे यहाँ कन्यादान माना गया है। उस कन्या का दान जब होता है तो देने वाले के कुल का कल्याण तो होता ही है, उस कन्या की गृहस्थी से जो भी संतान होती है उससे देश का, समाज का, कुल का, सबका कल्याण होता है। ऐसी शुद्ध और योग्य संतान उत्पन्न होती है। इन सबका आज के ही दिन से श्री गणेश होता है। इसलिए हमारे यहाँ चातुर्मास के अंतिम समाप्ति पर, कार्तिक की समाप्ति पर ये कार्यक्रम किया जाता है। इसलिए विष्णु की जो 3 रात्रि उपासना होती है वो भी इसी समय होती है। और उस समय जब भगवान विष्णु का जागरण हो जाता है, तब आषाढ़ के आरंभ में जिस तुलसी वृक्ष को हम लोगों ने पाला पोसा था, उसको हम कन्या मान करके पालते पोसते रहे और उसी पाले पोसे तुलसी के गाछ को, तुलसी के वृक्ष को भगवान को अर्पित करते हैं। कहा जाता है पुराणों में, भगवान विष्णु तुलसी दल से ही संतुष्ट होते हैं। भगवान कृष्ण के जो पटरानियाँ थीं, लक्ष्मी, रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी, 8 पटरानियाँ, उनमें सत्यभामा ने पति का दान किया नारद जी को। अब जब दान किया, बाद में फिर उनको याद आया कि पति तो अब मैंने दान कर दिया तो ये ले जाएंगे, उनका कैसे पति प्राप्त हो। तो निर्णय हुआ कि दान की हुई वस्तु की बराबरी की सामग्री स्वर्णाधिक दे दो और दान की हुई वस्तु को ले लो। तो सत्यभामा जी ने तराजू रख करके एक तरफ भगवान कृष्ण को बिठाएं और दूसरी तरफ स्वर्णाधिक देना शुरू किया कि जिससे बराबर पर पलवे आ जाए। परंतु स्वर्णाधिक में इतनी क्षमता कहाँ कि जो भगवान को बराबरी कर सके। नारद जी बोले, तुम्हारा तो काम पूरा नहीं हो रहा है। सत्यभामा जी बड़ी व्याकुल हो गई, कैसा करूं। रुक्मिणी जी वहाँ आई
रुक्मिणी जी ने कहा, बहन चिंता क्यों करती है, ये सामग्री स्वर्णाधिक सब उतार और खाली पलरे में एक तुलसी दल रख दे। जैसे ही तुलसी दल रखा है तो तुलसी का दल वाला पलरा नीचे आ गया, तो भगवान कृष्ण का पलरा ऊपर। इतना महत्व हमारे यहाँ नारी का है, और उस नारी को हम लोग अपने यहाँ घर में माताएं तुलसी कोट बना करके रोज़ शाम को दीप अर्पित करती हैं, पूजा करती हैं। इस तरह से हमारी ये भारतीय संस्कृति नारी का कितना सम्मान करती है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी दल के नहीं होती। इतिहास में हमने पढ़ा है, नेपाल हम लोग गए थे तो वहाँ गंडकी नदी में शालिग्राम जी की शिलाएँ मिलती हैं। तो हम लोगों ने पूछा कि महाराज जी थे शंकराचार्य जी जिनके साथ हम गए थे, महाराज ने पूछा कि ये शिला ऊपर कैसे आती है, आप लोग कैसे लाते हैं, कोई गोता लगाते हैं कि क्या करते हैं? कहा नहीं महाराज, हम लोग गोता नहीं लगाते, जहाँ तल में देख लेते हैं कि यहाँ शिला रखी है तो उसकी सीध में ऊपर हम तुलसी दल डाल देते हैं जल के ऊपर, तो वो शिला जो अपने आप ऊपर उठ कर के तुलसी दल से चिपक जाती है, तो हम लोग ले लेते हैं। ये हमारे यहाँ अपूर्वता अभी तक बनी हुई इस कलयुग में भी। इससे हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति को, जितने भी नारी हैं, जितने भी पुरुष हैं, ये सब समझें। तो बंगाल तो नारी का पूजा की है, भगवती महाकाली विद्यमान है, इन्हीं का सबका रूप भगवती तुलसी हैं। भगवती तुलसी का विवाह पुराणों में आता है जालंधर नाम के दैत्य के साथ, जो शंकर का अवतार था और राक्षस था। उसका वध नहीं हो रहा था, तुलसी की पतिव्रता के कारण, पातिव्रत के कारण उसकी रक्षा हो जाती थी। भगवान विष्णु आए और इस तरह से उन्होंने उसके पातिव्रत को किया तो जालंधर का वध हुआ। परंतु भगवान विष्णु ने कहा कि हमने तुम्हारा धर्म किया था इस तरह से, तो अब हम इसको किस प्रकार से चुकाएंगे, तुम हमेशा हमारे माथे पे विराजमान रहोगी। ये हमारे यहाँ की कथा है। तो इस तरह से हम लोग नारी का इतना सम्मान करते हैं। उसी का प्रतीक आज ये होता है कि नारी की पूर्णता पुरुष से है, पुरुष की पूर्णता नारी से है। ये गार्हस्थ संबंध हम लोगों क्या होता है, और इस गार्हस्थ संबंध का इतना संबंध होता है कि हमारे यहाँ बिना कॉलेज गई हुई बूढ़ी माताएं कहती हैं, डोली में आई हूँ अर्थी में जाऊँगी और किसी तरह से मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। ये नारी का समर्पण हमारे यहाँ। सृजन, खबर बांग्ला निউজ।